Good morning, dear students. Today we will do the exercise 5.2, question number first of chapter exponents. Your question is convert the following into power notations. क्लास मैंने ये क्वेश्चंस आपको कल भी कराए थे, लेकिन कल आपका जो है होल नंबर्स आपको दे रखे थे और आज की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो रेशनल नंबर की फॉर्म में, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर हैं और निगेटिव नंबर्स भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 16/81। सो व्हेन यू डू द फैक्टर्स ऑफ 61, दोज विल बी 2 into 2 into 2 into 2 4 times, and the factors of 81 are 3 into 3 into 3 into 3. This is also 4 times. So how we will write? We will make the 1 pair of these. So we will write 2/3 into 2/3 into 2/3 into 2/3. तो इस क्वेश्चन में क्लास आपको ये ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए, जिससे कि आप उनकी पेयरिंग कर पाए इस तरीके से। तो व्हाट विल बी द आंसर? वी विल राइट 2/3 रेज टू द पावर 4। आप इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे और पावर फॉर्म में लिख देंगे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी। दिस इज -125/216। Now how we will write this? 125 is 5 raised to the power 3. This is -5 into -5 into -5. Now why we have put the minus sign? Because this is -125. So we will write -5. So there's -5 into -5 is 25, and 25 multiplied by -5 becomes -125. So we will put the minus sign क्योंकि ये बेस आपका सेम होना चाहिए। And in the denominator we have 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Now you can clearly see class, -5 is 3 times, 2 is also 3 times, and 3 is also 3 times. So how we will write all this? -5/2 into 3 into -5/2 into 3, एक ये वाला फिर ये, देन ये, इस तरीके से हम 1 by 1 लेते जा रहे हैं। Now this will be -5/6 into -5/6 into -5/6. So what will be the answer? The answer is -5/6 raised to the power 1 2 3 raised to the power 3. So this will be the answer for this question. I hope class you get the answer. Now look at the question number C. This is the third part is -64 divided by 125. Now see class, as I told you, -125 का तो क्लास आप जानते ही हैं, तो मैंने डायरेक्ट इसको लिखा है। Now see, I am doing the factors of 64. Those will be 2, 32, then again by 2 it becomes 16, again by 2 it will be 8, again by 2 4, again by 2 2, again by 2 1. Now if you write it as -2 raised to the power 6, देखिए क्लास, अगर आप -64 -2 raised to the power, are these two same? No, these two are not same, because when the negative base having the even power, जब इसकी इवन पावर होगी तो इसका आंसर क्या होगा? 64 होगा। -64 आपका नहीं आ पाएगा। एंड सेकेंडली, जो बेस में आपका जो 5 दे रखा है वो 3 टाइम्स है, तो इसको भी आपको 3 टाइम्स की मल्टीप्लीकेशन में ही लिखना है। 64 को आपको इस तरीके से लिखना है कि वो एक नंबर 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्योंकि इस तरीके से ये नेगेटिव पावर नहीं आ पाएगी, क्योंकि -2 रेज टू दी पावर 6 की वैल्यू 64 होगी, माइनस में नहीं होगी। तो दो रीजंस हैं कि हम -2 की पावर में नहीं लिखेंगे। तो व्हाट वी विल डू? वी विल डू द पेयरिंग, 2 2 ज़ा, and so this will be 4 4 and 4, and we will put the minus sign, because -4 into -4 into -4, this will become -64, क्योंकि 3 बार नेगेटिव साइन है तो माइनस में आ जाएगा। तो व्हाट वी विल राइट इन द पावर नोटेशन? -4, so we will write it as -4/5 into -4/5
into minus 4 by 5, which will be minus 4 by 5 raised to the power 3. I hope class you understood the question, right? Now we will do the question number D and E. D you can do yourself, class. Let me tell you the question number E. This is 512 divided by 729. Now look very carefully, class. The factors of 512. See, the factors of 512 are 2, 2, 5, 6, again by 2, 128, again by 2, you will get 64, again by 2, you get 32, again 2, you get 16, again 2, you get 4, by 2, 2, and 2, and 1. So, how many times you get 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry class, this here it is missing. This. Here comes 8, then again by 2, here comes 4, 2, and this one. So 2 is coming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times. Now we will write 729. So what are the factors for this class? This will be 729 के क्लास फैक्टर्स हम करेंगे. So this will be 3, 2, 4, 3, again by 3, 81, again by 3, 27, again 3, 9. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब देखिए क्लास, जो न्यूमरेटर में आपकी पावर आएगी वो 2 की पावर 9 है और डिनोमिनेटर में आपकी 3 की पावर 6 है. लेकिन हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को सेम करना है. तो हम क्लास क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर हम 2, 2 का पेयर करें तो हमारे पास टोटल कितने पेयर्स हो जाएंगे? 3 पेयर्स, राइट. एंड यहां पर अगर हम 2, 2 का पेयर करेंगे तब तो हमारा एक रह जाएगा. यहां पर हम 3, 3 का एक पेयर कर लें क्योंकि टोटल 9 टाइम्स है. सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एंड यहाँ पर 9 9 9. अब 8 भी आपका 3 टाइम्स हो गया, 9 भी आपका 3 टाइम्स. 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729. So what we will write? 8 by 9 into 8 by 9 into 8 by 9 equals to 8 by 9 raised to the power 3. I hope क्लास आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे. जो है इस तरीके से आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितने टाइम्स आपका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है उतने ही पावर आपकी डिनोमिनेटर की भी आनी चाहिए, जिससे कि आप जो है इसको अच्छे से क्वेश्चन को जो है होल की पावर में लिख सकें. और इस चीज का आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं और सपोज आपने अपना आंसर लिख दिया 8 by 9 रेज टू दी पावर 3, तो ये आंसर जो है आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 8 की पावर है, 9 की पावर नहीं है. इसलिए आपको ब्रैकेट को यूज करना है. और जब हम ब्रैकेट यूज करते हैं तो हम इस तरीके से इसको रीड करते हैं 8 by 9 होल रेज टू दी पावर 3. मीन्स आपको इन दोनों की पावर है 3, सिर्फ 8 की पावर 3 नहीं है. तो आप इस वर्ड को होल को ध्यान रखेंगे, 8 by 9 होल रेज टू दी पावर 3. यहाँ पर हम होल वर्ड यूज करेंगे ब्रैकेट के लिए कि ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज है उस पूरे के ऊपर 3 है. तो इस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन क्लास कर लेंगे. आई होप क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप सब लोग. थैंक यू क्लास.